जैसे कहते जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तब क्या होगा। और इसलिए 2G के मामले में जो तथ्य सामने आए हैं उससे वही साबित होता है जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है। हमने लगातार ये कहा है, सबूतों के साथ कहा, कि कांग्रेस अपने राजनीति के लिए सीबीआई का दुरुपयोग करती है और हर घोटाले पर पर्दा डालना यही उनकी रणनीति है। We have always seen witness going hostile, but rarely we have seen the pleader of the government helping the accused. But this is exactly what is happening now. The new revelations in 2G case are serious enough for a fresh inquiry. BJP is consistently saying with conviction that Congress is using, abusing and misusing the CBI for their political purpose. They have converted Central Bureau of Investigation into Congress Bureau of Investigation. Sometimes they influence the investigating arm. If that is not possible, they influence through the prosecution arm. And the strategy is very clear. They want to cover up every scam which is unearthed because of so many factors. अगर 2G का भी इतिहास देखेंगे तो ये बात साफ होती है। पहले तो जब 2G का घोटाला सामने आया तो सरकार ने मानने से ही मना किया। मंत्री राजा और बाकी लोगों का बचाव करते रहे। सीएजी को प्रहार किया, सीएजी को झुठलाते रहे। आज भी मनीष तिवारी सीएजी को चैलेंज करते हैं कि आप आंकड़े बताओ, कहां से लाए 1.76 लाख करोड़, बताते। बहुत हमारा दबाव बढ़ा तो सीबीआई की इंक्वायरी उन्होंने ऑर्डर की 2009 में, लेकिन वो कागज पर चली पूरा 1-1.5 साल, कुछ नहीं हुआ। जब उच्चतम न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लेकर उसका मॉनिटरिंग शुरू किया तब जाके सीबीआई का कुछ काम शुरू हुआ। और तब सरकार ने स्पष्ट आदेशों के बाद फिर थोड़ी सी एक्शन लेना शुरू किया, राजा का इस्तीफा हुआ। हमने जेपीसी की मांग की, जेपीसी की मांग को ठुकराया। उस समय पीएससी की भलाई कर रहे थे प्रधानमंत्री मुरली मनोहर जोशी जी को कितना महान बता रहे थे और पीएससी की अहमियत जता रहे थे देश को, और इसलिए कहते थे जेपीसी की जरूरत नहीं। जब मामला पीएससी ने शुरू किया तो उसके रिपोर्ट को उन्होंने बहुमत के आधार पर और बहुत षड्यंत्र के तरीके से उसको पेश न होने दिया। अब जेपीसी स्थापना हुई तो जेपीसी को भी जिस तरह से सदस्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलाना चाहते उस पर भी सवालिया निशान है। अब तो सारी हदें पार कर दी कि सरकारी वकील ही आरोपी का काम करे, फीस सरकार से ले, मदद आरोपी को करे, यह काम हो रहा है। What we have seen throughout the 2G scam is what the Congress intentions are. They first were refusing to accept the fact that there is any scam. Then they attacked the CAG, even they continue to attack CAG, knowing fully well that the scam was real. Then they defended, even the Prime Minister defended the corrupt for the full 1 year in 2009. And then when there was more pressure, they ordered CBI an inquiry, but that inquiry never started in effect.
It was a lame duck inquiry for 15 months till the Supreme Court took cognizance of its suo motu and started monitoring it on weekly basis. Then things started happening. And only after when Supreme Court forced, the government acted. Then we were demanding JPC probe. They refused. That time the Prime Minister is on record saying very laudable things for our senior leader, Dr. Murli Manohar Joshi, and saying many good things about PSC. But when the PSC actually did the homework and prepared the report, then Chidambaram's role was questioned. Then the Congress members in the PSC torpedoed the whole report and saw to it that it is not presented in the House. Even after JPC was formed, that too after one session was wasted by Congress, the JPC, how it is functioning, that is also the questions which are being raised now. But here the new revelation, which is very important, because here is the government pleader who is to defend the government and convict those who have defrauded the nation. Instead, he is found helping them. This is a serious matter. But how many cover up? कितने cover up करेंगे? CWG का भी हमने देखा, 2G का देखा, कोल का देखा. अभी आज समय नहीं है कि वो उल्लेख करता हूँ. अभी सब आया कि VVIP स्कैम जो है 5,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर्स 13 खरीद रहे हम, VVIP हेलीकॉप्टर स्कैम. मैं पिछले 1 साल के उसके पीछे पड़ा हूं. इटली में उस पर एक्शन हो रही है. जो कंपनी का सीईओ है उसको इटली ने गिरफ्तार किया है. यानी जिस देश को फायदा है वो करप्शन के खिलाफ एक्शन ले रहा है, और जिस देश का नुकसान हो रहा है वो करप्शन पर चुप है. तो ये हो रहा है. सो दिस इज व्हाट कांग्रेस इज अप टू. और इसलिए हम मांग करते हैं कि इसकी नए सिरे से पूरी जांच हो. एंड कांग्रेस ओज अ रिस्पॉन्स टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री as this expose has led to the further dilution of whatever little faith the people had on the independence of CBI. सर, दूसरा मुद्दा है यासीन मलिक. पहले तो यासीन मलिक जी को जाने दिया पाकिस्तान. वहां वो JKLF के बैनर तले अफजल गुरु के फांसी के विरोध में उपवास पर बैठते हैं. भारत सरकार कोई राजनीतिक प्रयास नहीं करता है. एंड सबसे वही स्टेज पे हाफिज सईद आ गए जो 26/11 का हमलावर है, और उन्होंने कहा ये तो भारत में जुडिशियल टेररिज्म है. एक टेररिस्ट भारत को जुडिशियल टेररिज्म करार दे, इससे भारी गंभीर बात क्या हो सकती है. इसलिए बीजेपी कंडेम्स द इनएक्शन ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट in preventing Yasin Malik to stage an anti-India demonstration under the banner of JKLF in Pakistan. The stage was used by Malik and others for their vitriolic attack against India post-hanging of dreaded terrorist Afzal Guru. And to add, and to rub India the wrong side, Yasin Malik invited Hafiz Saeed. He says, I have not invited, he came on his own. How this happens? Hafiz used your stage and he said that in India there is a judicial terrorism. This is BJP demands that government should immediately cancel his travelling documents and censure a proper censor on his anti-India activities in future. उस पर जो भी कार्रवाई करनी है वो भारत लाकर करनी चाहिए, क्योंकि अलगाववाद को यहाँ तक इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि उनकी फैमिली वहाँ है. इसलिए ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि अलगाववादी वहाँ जाए और भारत के विरोध में विश्वमन करे. यह हम नहीं करने देंगे. और इसलिए इसकी भर्त्सना करते हैं भारत सरकार क्यों देख रहा है शांति से.
इस सारे तमाशे को बंद करने का भारत सरकार के पास बहुत उपाय है, लेकिन वो नहीं किए हैं, इसके और हम इंगित कर रहे हैं। तीसरा एक बात है, आज क्या है, मुद्दे ही ज्यादा हो गए, क्योंकि कांग्रेस के पाप कितने गिनाऊं। 11% की महंगाई हो गई जनवरी में, आम आदमी पर बोझ 11% से बढ़ा। सारी जीवनावश्यक वस्तुओं की कीमतें में आग लगी एक तरह से, क्योंकि सरकार ने खुद डीजल, पेट्रोल और फर्टिलाइजर और बाकी सारी कीमतों के साथ जो खेल किया, और साथ ही साथ बाकी कीमतों पर नियंत्रण रखने का कोई उपाय नहीं किया, उसके कारण ये कीमतों का बोझ आम आदमी पर पड़ा है और आम आदमी पीसा जा रहा है। The consumer price inflation has once again climbed over 10% in January 2013. The Manmohan Singh government has completely failed in both macro and micro management of Indian economy, and the common man is paying the price. GDP growth at 5% and inflation at 11%. उल्टा हो गया। ग्रोथ होनी चाहिए थी 11% की और महंगाई चाहिए थी 5% की, उल्टा हो गया। इसका खामियाजा आम आदमी, आप सब लोगों को, हमें सबको भुगतना पड़ रहा है। What is worse, the new finance minister Chidambaram is challenging the data of Central Statistics Office. यानी ये क्या है, खुद को सही साबित करने के लिए दूसरे को झुठलाते हैं। सो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एक आपने ही बनाई है, अपने देश की एक 65 साल की गरिमामय संस्था बनी है, जिसके आंकड़ों पर पूरे लोग, जनता विश्वास रखती है, उसके आंकड़ों को ही सिरे से खारिज कर रहे चिदम्बरम जी। बट द परफॉर्मेंस ऑन द कोर सेक्टर ऑफ माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एज ऑल्सो कंज्यूमर गुड सेल्स। अगर महंगाई होगी तो बाजार में जाकर कम खरीदेगा ना, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें लेने में ही सारे पैसे समाप्त हो रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट, फाइस्कल डेफिसिट सतत बढ़ रहा है, और इसके लिए ये बाहर के सिचुएशन को, एक्सटर्नल सिचुएशन को दोष दे रहे हैं। गवर्नमेंट शुड इंट्रोस्पेक्ट एंड कैरी आउट मिड कोर्स करेक्शन। सरकार सोचे, गिरेबान में झांक कर देखे क्या गलती हो रही है, क्यों अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री विफल हो रहा है बार बार, और क्यों नहीं 4 साल से महंगाई का संकट कम होता है बल्कि बढ़ रहा है, जबकि विकास कम हो रहा है। तो इसके लिए सरकार को तुरंत उपाय करने चाहिए। चूंकि बजट सत्र है, इस मुद्दे को हम बहुत विस्तार से पार्लियामेंट में उठाएंगे बजट की चर्चा में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हर रोज सूर्यनेल्ली रेप केस के बारे में जो भी नए खुलासे हो रहे हैं वो गंभीर है, और हमारी राज्य इकाई लगातार आंदोलन कर रही है वहां। और आज हमारे राज्य इकाई के दो पदाधिकारी यहां आए और उन्होंने भी सारी स्थिति को अवगत कराया। The new revelations every day in Suryanelli rape case has made P.J. Kurian's position as Deputy Chairman of Rajya Sabha untenable. BJP, after consulting the state unit, demands that on moral grounds he should quit the office till he is absolved of the charges against him. तो जिस तरह के आरोप हुए हैं उसको देखते हुए, उसकी गंभीरता को देखते हुए, हमारे राज्य इकाई से बात करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि नैतिकता के आधार पर श्री कुरियन जी को अपने पद से मुक्त होना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, और जब तक कि उन पर लगे आरोप उनको क्लीन चिट नहीं देते, तब तक उनको पद ग्रहण नहीं करना चाहिए।